This meeting is being करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का जो लेक्चर है ये है स्वामी विवेकानंद के लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा में। Yes. Our the task before us, isn't it? Yes. The work before us, work before us। तो हिंदी में है ये हमारा प्रस्तुत कार्य। ये स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका या भारत में मद्रास में उन्होंने ये लेक्चर दिया था और उससे जनता बहुत प्रभावित हुई थी। और ये स्वामी जी ने शिकागो धर्म महासभा में जाने के पहले लेक्चर दिया था, यानी उसके बाद में अंत में जन सज्जनों के विशेष आग्रह एवं प्रयत्न से ही वे अमेरिका की शिकागो धर्म सभा में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। अतः इस व्याख्यान का विशेष महत्व है। ये बहुत अच्छा था और उसमें स्वामी जी ने भारत की महानता की बात कही थी और कहा था कि हमको उदार होना है। तो मैं अशोक रहेजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस लेख की समरी करें। जी महाराज। The work before us. Yes. This article has been taken from the book titled as Lectures from Colombo to Almora by Swami Vivekanand Ji. This lecture was delivered by Swami Ji. But there is a problem. British Society Madras. जी महाराज। Yes sir. Yes sir. आवाज आ रही है ना महाराज? ये बदल दिया है? आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है। क्या ठीक होगा आवाज? जी। So Swami Ji said the problem of life is becoming deeper and broader every day as the world moves on. It is becoming every day clearer that the solution of any problem can never be attained on racial, national, or narrow grounds. Every idea has to become broad till it covers the whole world. Narrowing the scope of our actions has led to degeneration. Two curious nations, that is, the Indian Aryan means ancient Hindu and ancient Greek, sprung of the same race, but because of different environment and different surroundings, they worked out in their own ways. The Indo-Aryans became introspective, while the Greek went outside. We find that the Hindu mind went on in its own direction and produced the most marvelous results. Even today, we find the logical capacity and the tremendous power which the Indian brain possesses is beyond compare. At the same time, 1 or 2 centuries before Mohammedan conquest, we find degradation in everything in India, be it in art, in music, in science, everything. There was a loss of originality in every field. Even in religion, there came the horrible degradation. Even the greatest minds were busy in discussing the evils like touchability and other superstitions. The themes of Vedanta and glorious conceptions of God and soul ever preached on the earth were half lost, but still preserved by few sannyasis. Then the English conquest of India took place. England was greatly influenced by the Greek culture. Then Swamiji said, today the ancient Greek is meeting the ancient Hindu on the soil of India. A broader and more generous conception of life is before us. To become broad, to go out, to amalgamate, to universalize is the end of our aims. But all the times we have been making ourselves smaller and smaller and disassociating ourselves contrary to the plans as were laid down in our scriptures. Swamiji further says, with all my love for India, I cannot but think that we have to learn many things from other nations. Our great lawgiver Manu had said, receive some good knowledge even from the lowborn, even from the man of lowest birth. Learn by service the road to heaven. Being true children of Manu,
we must obey his command. But at the same time, we must not forget that we have also to teach a great lesson to the world. But we did not go out to compare the things with other nations. That is the great cause of the degradation of Indian mind. And we have paid a penalty of 1,000 years of slavery because of this. So you must go out, must expand if you want to live. Otherwise, death is upon you and danger is ahead. However, Swamiji said that this is not a new thing. If you think Hindus have always been confined to four walls of their country, you are mistaken. You must study the old books, must study the history of the race. Every nation must give in order to live. The gift of India is the gift of reason and philosophy, wisdom and spirituality. Wisdom and philosophy do not march with violence, but come on the wings of peace and love. Therefore, we had to give discussion on causes of India's greatness. Swamiji said that why our religion is truer than any other religion, because it never conquered, it never shed blood, because its mouth always shed down all words of blessings, of peace, words of love and sympathy. It is here alone that the ideals of toleration were first preached. It is here only that Hindus built mosques for Mohammedans and churches for the Christians. The one characteristic of Indian thought is its silence, its calmness. Further discussing about literature of India and of Europe, Swamiji said, like the gentle dew that falls unseen and unheard and yet brings into the blossoms the fairest of roses has been contribution of India to the thought of the world. Silent, unperceived, yet omnipotent in its effect. It has revolutionized the thought of the world, yet nobody knows when did it do. It was once remarked how difficult it is to ascertain the name of any writer in India. To which Swamiji replied, it is India, Indian idea, not like modern writers who steal major of their ideas from other authors. The great masterminds producing momentous results in the hearts of mankind were content to write their books without even putting their names and to die quickly, leaving the books to posterity. Who knows? The writers of our Puranas, our philosophy, nobody knows. They all pass under the generic names of Vyasa and Kapila. And so on. They have been true followers of Gita, which says, to work you have the right, but not to the fruits thereof. Thus, India is working upon the world. Even before Buddhism, Vedanta had penetrated into China, into Persia, and islands of Eastern Archipelago. Again, when the Greek had linked with the Eastern world together, there came the Indian thought. Then about Christianity, he said, Christianity is but a collection of little bits of Indian thoughts only. Ours is the religion of which the Buddhism, with all its greatness, is a rebel child, and Christianity is a very patchy imitation. Now the time has arrived that the Indian thought, philosophical and spiritual, once more must go over and conquer the world. Among the great conquering races in the world, we also have been great conquerors. The story of our conquest has been described by that noble emperor of India, that is Ashoka, as the conquest of religion and of spirituality. Once more, the world must be conquered by India. This, the dream of my life, and each one of you must have same dream in your minds. But for this, we must be ready. We must strain every nerve for it. We can conquer the world with spirituality. Other countries slowly are finding out that what they want is spirituality to preserve them as a nation. They are waiting for it. They are eager for it. But where is the supply to come from? Here Swamiji says, where are the men ready to go out with messages of the great sages of India, who are ready to sacrifice our things, everything,
So spread this message to every spread this message to every corner of the world. This is the time to work so that India's spiritual ideas may penetrate deep into the West. So Swamiji said to the youth of Madras that we must go out, we must conquer the world through our spirituality and philosophy. But he said, at the same time, we must not forget that what I mean by conquest of the world by spiritual thought is sending out of the life-giving principles, not the superstitions, what we have been hugging to our desk for centuries. You must be aware of superstitions. He said, I would rather see every one of you rank atheist rather than superstitious fools, because atheist is alive and you can make something out of it. But if the superstition enters in the brain is gone. So what we want, the brave and bold men. He said, avoid all mystery. Is there any mystery in Vedanta? No. In the Vedas or in the Samhitas or in the Puranas? No. The mystery is a sign of weakness. So we must be strong, stand on our own foot. Every principle of religion is safe, and sooner the black spots of superstition and mystery are purged away, the better the principle will shine, the more gloriously. Our scriptures are best preserved scriptures in the world. These texts have been commented upon by different commentators, preached by great teachers and sects, founded upon them, and there are various apparently contradictory ideas also. There are certain texts which are entirely dualistic, others are entirely monistics. But this is not the fault of our Vedas. They are both dualistic as well as non-dualistic. We understand them better today in the light of newer ideas. These are but different conceptions leading to the final conclusion that both dualistic and monistic conceptions are necessary for evolution of the mind. So long as we have a body and so long as we are deluded by the idea of our identity with the body, so long as we have five senses, see the external world, we must have a personal God. But when the stage comes, when the human soul transcends all limitations, and then alone, conception of monism flashes into the soul. When I and the whole universe are one, when I and Brahman are one. And this conclusion you will find has reached not only through knowledge and philosophy, but parts of it through power of love. If there have been sages and rishis in the past, be sure there will be many now. If there have been Vyasas and Valmikis and Shankaracharyas in the ancient times, why may not each one of you can become a Shankaracharya? But he said, but for this you must open your heart. Religion is not going to church or putting marks on the forehead. This is of no use if you have not realized the God. Our scriptures, he said, our scriptures declare again and again that even the knowledge of external senses is not religion. He who realizes transcendental truth, he who realizes the Atman in his own nature, he who becomes face to face with God, sees God alone in everything. He has become a rishi, and there is no religious life for you until you have become a rishi. Then only and then alone religion begins with you. Now it is only a preparation. So we must therefore remember that our religion lays down distinctly that everyone who wants salvation must pass through the rishihood, must become mantra drishta, must see God. Then it becomes easy to look into the scriptures with our own eyes, understand the meaning for ourselves, to analyze just what we want, and to understand the truth for ourselves. We must not mind difference of thoughts of Ramanuja and of Shankaracharyas. All we must admit the truth that power is there
potential or manifest. It is there. All power is within you. He said, you can do anything and everything, even without guidance of anyone. All power is there. Just stand up and express the divinity within you. धन्यवाद स्वामी. हो गया? Yes. Okay. So, Kundu, start your questions. Yes, Maharaj. Ah. Maharaj, my first question is, Swamiji says every idea has to become broad till it covers the whole of this world. Now the question is, how does ordinary ideas become broad? For example, take the idea of untouchability. How can it be broadened and become progressive for the whole of humanity? Nowadays, it has become so easy by multimedia, electronic media. So at that time, Swamiji said it should be broad. Nowadays, any damn thing you think, next day it becomes broad. You have got the mobile phone. You talk to someone, he talks to someone. And there are so many channels in the internet. So many channels in the TV. Hundreds of channels. Put it there and it becomes continuously, it will become broad. What is that? No, Maharaj, but then he says that this broadness, he meant by broadness is that it has to be ennobling and it has to be beneficial. Like when he said that we have become narrow and we have become slaves, now we have to become broad-minded and we have to elevate ourselves. So my question is superstitions idea. He says every idea can be broadened. So can these lower ideas also can be broadened? That's all. Yes, they are going on. Okay, man. Lower ideas, that's why we don't see the TV. They are becoming broad. Any damn thing you said, anyone starts as a channel and anything they can put. And so far as the religious ideas are concerned, all over the world, the Hindu ideas have reached. Yes, man. You go to any country in the Europe and you will get the Hindu ideas. There are 1,000 religious Hindu denominations in California itself. Yes, man. So there is no difficulty now. Everything and anything can become broad. No difficulty about it. Okay, man. Even at that time, Swamiji said that it should be broad. And that's why he lectured at so many places. But at that time, there were no media. Yes, nowadays, nothing but media. Anything can go anywhere, any moment. This we are talking and this will immediately become, is already going on the net. Yes, Maharaj. Now the second question is, Maharaj, everyone thinks his own religion is the best. So when Swamiji says that ours is the religion of which Buddhism with all its greatness is a rebel child, does he mean that it's the most ancient religion? In what way is Buddhism a rebel child? Why he is calling it a rebel child? See, Buddhism actually came up as a rebellion against the priestcraft and animal sacrifice in yajnas of the Vedas. Actually, that is the way Buddhism came up. It is definitely a rebel child. Buddha found so much sacrifice is being done, so many animals are being killed. Then he said, there was a sacrifice going, he said that I am a better animal, you kill me. That is how he rebelled. So he is definitely a rebel child.
white child was that he never, many things he did not accept. That is also true. तो महाराज जी, So, बोलो. हाँ, यदि बुद्धिज्म को रेबेल चाइल्ड कहा है तो द सेम थिंग अप्लाइज टू जैनिज्म आल्सो. वो जैनिज्म के बारे में कभी स्वामी जी ने कुछ बात कही नहीं है और उसको जी. मेरा कहना बड़ा मुश्किल है, मैं कमेंट नहीं कर सकता इसको. ओके, थैंक यू बुद्धिज्म को तो हमें हाँ. डेफिनेटली मिलता है ना जी. कि बुद्ध ने ये यज्ञ इत्यादि इसलिए देखे और उसमें जो नष्ट हो रहा था इसलिए वो हो गए. और जैनिज्म में भी तो अहिंसा को इतना ज्यादा महत्व इसीलिए दिया गया है कि पहले जो है हिंसा धर्म का अंग था, जी. इसलिए किया था. तो ये तुम्हारी जो पॉइंट है ये क्लियर है कि जैनिज्म को भी एक रिबेल चाइल्ड बनाया जा सकता है. ओके, ठीक है. थैंक यू महाराज, प्रणाम. सो एक तो रेबिलियन महाराज ये हो गया कि प्रीस्टहुड के अगेंस्ट में, बट और भी तो डिफरेंस है बुद्धिज्म के साथ हिंदुइज्म का. लाइक बुद्धिज्म तो वेद को नहीं मानते है हैं. तो हाँ, डिफरेंस है तो. अच्छा महाराज, नहीं तो उसका तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ? प्रश्न यही हुआ महाराज दैट जब रेबेल चाइल्ड बोल रहा है, बुद्धिज्म क्या ये सेपरेट रिलीजन नहीं है हिंदुइज्म से? हिंदुइज्म का ही मतलब इज इट रिफॉर्म्ड हिंदुइज्म? लेकिन नहीं स्वामी जी, ना स्वामी जी कह रहे हैं ठीक है, रिले है, लेकिन पैदा तो हिंदुइज्म से हुआ है ना. अच्छा, दैट्स व्हाई इट इज जब कॉल्ड जन्म चाइल्ड. हुआ तब तो वो हिंदू था. ओके, हाँ, हिंदू थे ना, जन्म से हिंदू थे. यस महाराज. उसके बाद में उनका नहीं, ये तो ठीक नहीं है, वो अलग हो गए. ओके और महाराज. जितने हिंदू, बहुत सारे हिंदू लोग थे, ब्राह्मण थे, पंडित लोग थे, पुजारी थे, ये सब बौद्ध हो गए. तो अब बाकी पहले तो यहाँ पे धर्म में तो जैन हिंदू धर्म ही था ना, और तो कोई धर्म नहीं था. ओके, दैट्स व्हाई उसी इट्स में से कॉल्ड तो चाइल्ड. उठा है. हाँ, it has been a come out of Hinduism. ओके महाराज. यस That's why महाराज. it is called rebel child. Maharaj, in that case, क्रिश्चियनिटी को रिबेल चाइल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो बाहर से आई है. जी. but Maharaj, can Christianity be called a rebel child of Judaism? क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट है तो वो बाद में आई ना. हाँ, जुडाइज्म. ओके, ट्रू, वी कैन से Christianity is a rebel child बोलो या child बोलो of Judaism. Okay, that is true. That can be told. यस महाराज. गुड. हो गया. दैट्स ऑल महाराज. यस महाराज. अच्छा. Now, Subir, you take it. प्रणाम महाराज. Subir. हाँ, प्रणाम महाराज जी. हाँ, माय फर्स्ट क्वेश्चन महाराज जी है कि स्वामी जी seems to say Western thought and action is a culmination of what our ancient scriptures planned out for us, but we lost the way till recently in the last 1000 years. तो हम लोग we had lost our way in the last 1000 years. स्वामी जी ने रिवाइव किया इन चीजों को, लेकिन he says it's a culmination of our ancient scriptures जो हम वेस्टर्न थॉट एंड एक्शन में देखते हैं, उसकी कल्मिनेशन है. तो मेरा सवाल ये है, what did the ancient scriptures plan out for us exactly? स्वामी जी uses the word ना planned for us. तो वो क्या प्लान करे थे ancient scriptures? एंशियंट तो उन्होंने तो प्लान किया था, जो चाहते थे वो चाहते थे 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इन सब चीजों को सभी लोग स्वीकार करें, ये सबके भी सब में होवे. लेकिन स्वामी जी के अनुसार वो पूरा नहीं हो सका. इसलिए अच्छा. फिर वेस्टर्न कंट्रीज ने आके थोड़ा लिबरलिटी की, क्योंकि बाहर के लोग आए तब थोड़े से हम लिबरल बने. नहीं तो हम जो हमारा वो था, ब्राह्मण लोग ही सब कुछ अपने हाथ में सब ले लिया था. हाँ. और डोंट टचिज्म इत्यादि हो गया था. और स्वामी जी वो दक्षिण भारत में जब गए थे, उसकी भयानक स्थिति देखकर उसने वर्णन किया था. मतलब ये है
कि जो नेचुरल प्रोसेस में अगर डेवलपमेंट इंडियन हिंदू धर्म का होता, सनातन धर्म का होता, तो हम जिस लक्ष्य पर पहुंचते वो हम नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए ये बाहर से जो आए हैं उन्होंने मानो उसको ठीक से किया, उन्होंने मानो हमारे इधर थॉट को, हाँ हाँ, उन्होंने जैसे मानो हमारे थॉट को और एक्सपैंड किया, लिबरलाइज किया, राइट। ठीक है, ओके, दैट्स राइट। उन्होंने कहा ना कि थोड़ा हाँ, यानी इट वाज एनक्रस्टेशन हो गया था, तो बाहर से विचार आके उसको ब्रेक किया। हाँ, नैरो माइंडेड हो गए, राइट महाराज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, on page 203 204 Swamiji says such heroic workers are wanted to go abroad and help to disseminate the great truths of Vedanta. The world wants it. Without it, the world will be destroyed. My question is, has this been achieved by India so far? Has it been able to reduce violence or materialism in the world to some extent? These great truths of Vedanta, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, तो क्या हम कुछ इस वेदांत की जो मैसेज है वर्ल्ड में स्प्रेड करके इन द लास्ट से 100 years आफ्टर स्वामी जी, हैव वी बीन एबल टू अचीव एनीथिंग वायलेंस पे, मटेरियलिज्म पे? जाओ ना, बाहर जाओ, पता चलेगा, बाहर जाओ पता चलेगा। सभी धर्मों के अंदर, सभी कंट्रीज के अंदर जी, हिंदू आश्रमस हैं, हिंदू स्कूल, हिंदू टेम्पल्स हैं। ये अपने परमहंस योगानंद के कितने सेंटर्स हैं वेस्ट में। जी जी, तो सब लोग यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं, खोजने के लिए आ रहे हैं। एवरीवेयर इट इज देयर। जैसा मैंने अभी कहा ना कि कोई 10-20 साल पहले की बात है कि केवल उसमें कैलिफोर्निया में about 1000 small centers are there। जी जी, यानी वेस्ट, ये ईस्टर्न सेंटर, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, ये सब है। तो इतना सब तो हो रहा है जो स्वामी जी बोल रहे हैं ना, टू द ग्रेट एक्सटेंट इट इज हैपनिंग। यानी अमेरिका में अब वो क्रिश्चियनिटी को है ना सर्वाइव करने की मुश्किल हो रही है, ऐसी सिचुएशन होती है। जी जी, तो व्हाट स्वामी जी सेड इज ट्रू, इट इज हैपनिंग, डेफिनेटली इट इज हैपनिंग। so there is a contribution in the world thought of spirituality. There has been a change. Oh yes, there is a great change। यानी अब तो वो क्रिश्चियनिटी की बात कोई करता नहीं। अभी जाओगे तो सब स्पिरिचुअलिटी है, और सब देखोगे कि योग कर रहे हैं सब लोग, और क्या क्या है। जी जी जी, करेक्ट महाराज, यस यस, ठीक है महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, पेज 201 202 पे है। स्वामी जी कहते हैं ours is the religion of which Buddhism with it all its greatness is a rebel child, जैसे अभी बात हुई, and Christianity is a very patchy imitation. So I can understand that Buddhism is a rebel child as it refuses to accept the Vedas, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, but how is Christianity a patchy imitation? ये मेरे को समझना है भाई। ये हम भी नहीं समझ सकते, you know, unless you read thoroughly Christianity, अच्छा, in a very difficult to answer this। ओके, क्योंकि अब वो पैची इमिटेशन कैसा है, बड़ा कैसा कहा स्वामी जी ने। यानी क्रिश्चियनिटी जो है ड्युअलिज्म ही है, उसके आगे तो है नहीं वो लोग। इन दैट से इज स्टाइली स्मार्टली रिस्ट्रिक्टेड क्रिश्चियनिटी है। उन्हें फिलोसॉफिकली तो मार्सली रिस्ट्रिक्टेड ही है वो। तो वो ये मान लो कह सकते हो कि माइथोलॉजी वगैरह पे ही डिपेंडेंट एक वो है, रिलीजन है। बट इसके बाद अलावा इससे आगे वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कस। इट इज यू नो हाउ वी कांट डिसाइड अबाउट। महाराज जी क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट जो सरमन ऑन द माउंट है व्हिच इज वेरी मतलब जो वेदांत के साथ काफी मैच करता है, that way it seems to be an imitation of the Indian thought, Vedanta, Sermon on the Mount. ऐसा है ना कि you know जितने भी हैं अब जैनिज्म, बुद्धिज्म, कई जितने रिलीजन्स, मेजर रिलीजन्स के मेजर स्क्रिप्चर्स अगर पढ़ो ना, तो उनमें सिमिलैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। जी जी, यानी अल्टीमेटली तो रिलीजन तो एक ही है ना भाई। जी जी, तो फंडामेंटल थोड़े से
फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस होते हैं, एक आत्मा को मानता है, हाँ, एक आत्मा को नहीं मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, इस तरह के डिफरेंसेस होंगे। बाकी जी। डिफरेंसेस कहना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, फंडामेंटल तो एक ठीक है। महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इंडिया वाज अ लूज ज्योग्राफिकल एंटिटी, भारतवर्ष के नाम से हम उसको जानते हैं सालों से, thousands of years, but it was not a political entity till recently. It extended from Afghanistan, Burma, Sri Lanka, everywhere. So at that time, what common thread joined them? Was it religion alone जो इनको जोड़े रखा था? Because this अभी हालांकि टुकड़े हो गए हैं, लेकिन पहले लोग सवाल करते हैं कि इंडिया नाम की कोई चीज थी ही नहीं, लेकिन 4000 साल पहले हर जगह पुराणों में भारतवर्ष की मेंशन है। सो भारतवर्ष तो था, तो किस चीज ने जोड़ के रखा था इतना बड़ा एक खंड को? तो हो सकता है ये रिलीजन ही होगा। हिंदू जैसे कहा रहा है, तो कैसे सनातन धर्मी कैसे कहा गए? अब कहते हैं गांधारी जो थी ना, तो गांधार नगरेश यानी अफगानिस्तान की थी, कंदहार, हाँ है ना? हाँ, कंदहार से थी। गांधार जो है वो अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान, जी जी, हाँ, वहाँ की लड़की थी वो तो, हाँ जी जी। और ये भीष्म गए थे एंड ऑल दैट स्टोरी इज देयर। तो एक ने कोई ना कोई तो एक कॉमन होगा ही, एंड मोस्ट प्रोबेबली जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं वो सनातन धर्म, वो सनातन धर्म रहा। जी जी जी। महाराज लास्ट क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला था मेरे को कि ये रादर हिस्टोरिकल है, इसलिए पता नहीं मेरे को सवाल करना चाहिए कि नहीं। स्वामी जी स्पीक्स ऑफ टू क्यूरियस नेशंस, उन्होंने पहले पेज में ये वर्ड यूज किया है, टू क्यूरियस नेशन, द एंशिएंट हिंदू एंड द एंशिएंट ग्रीक। तो मेरा कहना था, व्हाट अबाउट एंशिएंट चाइनीज? ही डज नॉट मेंशन चाइनीज। व्हाट अबाउट, I don't know, he has not mentioned and we don't know about it. How can I answer? I mean, Swamiji never talked about it, and he did go while going to USA. he was कहाँ पे, शंघाई में या कहीं पे रुके थे, और वहां से फिर थोड़ा सा ट्रेवल किया था इन चाइना में किया था। रेमिनिसेंसेस उन्होंने जो लेटर्स उसके बाद में लिखे थे, उसमें उन्होंने चाइना का डिस्क्रिप्शन किया है, और थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो कभी कहा था, कुछ कह नहीं। उन्होंने कभी कहा था महाराज जी कि इंडिया विल बी फ्री, उन्होंने, स्वामी जी ने कहा था कि इंडिया विल बी फ्री इन 50 years, जो कि एक्चुअली हैपेंड। एंड अनदर थिंग ही मेंशन्ड अबाउट चाइना वाज कि लुक आउट फॉर चाइना इन द फ्यूचर, इट इज द नेक्स्ट पावर दैट इज गोइंग टू कम, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था अपने किसी टॉक में। Yeah, that is true. He did say. हाँ, but that is all. But इसके अलावा ज्यादा कुछ कहा नहीं। जी जी महाराज। महाराज जी देवाशीष बोल रहा हूँ महाराज जी। देवाशीष, स्वामी जी ने चाइना में एक जगह गए हुए थे, वो लोग उनको मारने के लिए दौड़ के आ रहे थे, तो एक दो भाषी जो थे, दो इंटरप्रेटर थे, उसको खींच के लेके गए थे। उसका बाद उन्होंने उसको समझाया कि ये सन्यासी है, तो उन्होंने अच्छा बिहेव करना चालू कर दिया। एंड ही एंटर्ड इनटू द लाइब्रेरी, ही सॉ ऑल द वेदास, बुक्स, एवरीथिंग। Our Indian all Vedas books which were stolen and destroyed. I mean, they took all those things and they found those books there in Cantonese. Yes, Cantonese is the place. He got down from the ship and went to that island there. Maybe I don't. They have all the literature of our ancient literatures are stored, and Swamiji was amazed. Maybe, but anyway, okay. ठीक है महाराज जी। Shall we go ahead? That's all my all questions. हाँ, मेरे questions हो गए महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। अच्छा, हाँ, इतु घोष, are you ready? जी महाराज। Okay, आ जाओ। जी, मेरा पहला प्रश्न है from the text. This question therefore is the greatest of the signs of the revival of national life, and through this expansion our quota
of our offering to the general mass of human knowledge, our contribution to the general upheaval of the world is going out to the external world. This is from the text. Now, I want to ask how we, means being aged, can serve this nation and get an impression of the revival of national life. No, what is the question? Everywhere you find the revival of national life, wherever you go, don't you find? Their trains are changing. Ji. AC trains have become, earlier they were not there, only 1 or 2 coaches were AC. Now Ji. whole trains are becoming AC. Ji. You have got planes. Ji. Everywhere there are facilities are Changing. there. Everywhere there is a revival of the country. No difficulty okay. about it. You don't Oh, need to see. It Okay. is absolutely ready. In IT, in Okay. shipbuilding, in And industry. how we can serve this nation, means now I say now we are being aged, so how we can serve, what we can contribute. तो बूढ़े होने के बाद कैसे करोगे? यही तो पूछ रही हो ना? यही पूछ यही तो हमारे क्वेश्चन में तुमने पूछा नहीं. When you are old age, you are written in the question is old age. Arey, we are doing it. See, we are sitting and having a Zoom meeting, and is all senior citizen meeting. Everyone is 70, 75, 80, isn't it? Most of us are there. Beyond. Okay. So why are you worried about it? So much of you can do for the country. Okay. Even donating money to distributing wealth to different poor orphans, and that is all. So many ways you can contribute. Encourage the new generation. Okay. Swamiji used to Yes. encourage the new generation. Yes. And most Encouraging, important, if you want to do anything for the country, every day read Swami Vivekananda. Yes. Ji. Every day you must read Swami Vivekananda. Yes. And Swami Turiyananji used to say, when you read Vivekananda, I just get up. Old age, at the age of 60, he used to get up and said that when we read Swami Vivekananda, even a dead man, a मुर्दा भी जो है ना वो जीवित हो जाता है. जीवित हो जाता है. जी. तो स्वामी जी को साधु पढ़ता है. जी. और आप लोग पढ़ेंगे नहीं, वचनामृत पढ़ेंगे, वचनामृत पढ़ेंगे. जी. अच्छा, मेरा सेकंड प्रश्न वचनामृत है. पढ़िए, लेकिन स्वामी जी को जरूर पढ़ना है. अरे बिना स्वामी विवेकानंद को पढ़े वचनामृत कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकते. जी. माधवानंद जी ने यही कहा था एक बार. Everywhere, Premanand ji, even Premanand ji said, everyone is reading Vachanamrit. No one is reading Sri Ram, Swami Vivekanand. What is this? So you are also not reading Swami Vivekanand. Not daily. Every day, every one of us, the Zoom meeting members, must read Vachanamrit. This is the best way in which you can serve the country. Ji. Please understand it very clearly. You yourself within 1 month, how correct I am doing, studying. Maharaj ji, I have been reading every day throughout my life. Books I have read probably 3 or 4 times. And when we ask the Zoom meeting people, we have read Karma Yoga, we have read Raj Yoga, we have read this book, that's all. What is this? The whole of complete work you must read. This is the way you can serve the country best. Yes. Please take it seriously. I am not joking. Yes. No. And I am not making a okay. Country का how do you serve the country? ऐसा नहीं. Country की service हो जाएगी, best service हो जाएगी. महाराज जी, कैरेक्टर बन जाएगा, आपका थिंकिंग बदल जाएगा. महाराज जी, आप लोग कहते हैं जैसे to understand कथामृता we have to read स्वामी जी. And एक सीनियर मॉन्क कहते हैं to understand Swami ji you have to read Sister Nivedita. Is that true? Okay, that is all right, but forget about that. But more important is to read Swami ji.
Yes. There are many Okay. things which are not easily understood in some complete works. For Hmm. that you need you need a little commentary of Sister Virita. Second, chalo. Okay, second question is from the text. These principles of our religion is all safe, and it should be the life work of every one of us to keep them safe and to keep them free from accumulating dirt and dust of ages. Now, my question is, what are these dirt and dust of ages? Is this accumulation because of our ignorance, wrong belief, etc.? And how can we stay away from these? वो स्वामी जी को इसी पैसेज के आसपास तुमने पूरा डिटेल से पढ़ते थे, समझ में आ जाएगा. वो है आइडोलेट्री, सुपरस्टिशन, बिगॉटरी, wrong conception about religion. These are Yes. dust. हमारे ऊपर पड़ी हुई है कितनी डस्ट. जी. Okay. अच्छा. And third question है from the text. They were great, these ancients, but we want to be greater. Now my question is, Swamiji asked us to be greater than the old saints. What should we practice to try to achieve that state? अरे एक ही चीज बोल दिया ना. हाँ, समझ गए. जी. If you want to become greater, read Swami Vivekananda. जी, समझ गए. पहले के ग्रेटनेस, बाहर बाद में आने वाली ग्रेटनेस, भारत की ग्रेटनेस, बाहर की ग्रेटनेस, जितनी ग्रेटनेस है वो सब अगर तुम स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे तो ग्रेट होने आओगे. जी. अरे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे भाई. जी. और पढ़ के ग्रेट हो गए हैं. जी, ठीक है, हो गया. हाँ जी, प्रणाम महाराज. तो महाराज ये गीता है आज की तारीख में. आज की तारीख में इट इज लाइक ए गीता दैट वी शुड रीड एवरी डे. आज की गीता जैसे गीता रोज पढ़ी जाती है हमारे वहाँ, वैसे हमने इसको रोज पढ़ना चाहिए स्वामी जी को. तो क्या बोल रहे, तुम्हारे प्रश्न क्या है? नहीं, मैंने कहा ये इस प्रकार से हमने व्यवहार करना पड़ेगा. आने वाले दिनों में बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि गीता पढ़ना इतना आवश्यक नहीं है जितना कि स्वामी जी का लिटरेचर पढ़ना. हाँ, ठीक बात है. जी. देवाशीष. प्रणाम महाराज जी, प्रणाम. जी, the first question, page 194. One atom in this universe cannot move without dragging the whole world along with it. How is it, sir? महाराज जी समझ में नहीं. क्या बोला? One atom in this universe cannot move without dragging the whole world along with it. Page 194 में बताया उन्होंने. So in practical life, every idea never become broad and covers the whole world of this world. Whole of this world. What is your question? You have to become. I could not understand. I could not. No, you have to become broad. That is all. That is right. Oh, okay. Yeah, don't get restricted. Okay. Every idea of yours will become broad. You become broad. Okay. It is not impractical philosophy. Otherwise, unless you become broad, otherwise become philosophy. Oh, समझ में आया महाराज जी. Thank you महाराज जी. Second question, page 194. And as a result, we find that from India have sprung all the analytical sciences, and from Greece all the sciences of generalization. What are these analytical sciences that sprung from India? You see, you can understand, first of all, जितने हमारे sciences हैं, spirituality है, सांख्य, योग, वेदांत, etc.
These are the analytical sciences which has come out of India. ओहो अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ओके थैंक यू महाराज जी थैंक यू अंडरस्टूड महाराज जी थर्ड क्वेश्चन आपने बता दिया थर्ड क्वेश्चन you already said that what is the cause of this national degradation priesthood animal sacrifice all these were the causes of national degradation is it correct महाराज जी थर्ड क्वेश्चन था मेरा we find some of this degradation in everything in art in music in sciences in everything the originality of the race seem to have been lost and even in religion your special field there came the most horrible degradations तो मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस नेशनल डिग्रेडेशन तो आपने बताया जैसे priesthood and animal sacrifice all these things were there is it that already Swamiji carefully read it because we became narrow narrow वो स्वामीजी बोल रहा है रिलीजन जो है वो कुकिंग पॉट में चला गया है ठीक है महाराज जी इस हाथ से पकड़ूं कि उस हाथ से पकड़ूं कितनी देर तक करना चाहिए नाक दबा के करना चाहिए एक नाक को दबाना पहले कि दूसरी नाक को दबाना पहले इसी में हो गया सारा रिलीजन तुम्हारा दैट इज द कॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ रिलीजन वेरी क्लियरली स्वामी जी इज यस महाराज थैंक यू महाराज तो समझ में आया महाराज थैंक यू फोर्थ क्वेश्चन है पेज 196-97 में टुडे द एंशिएंट ग्रीक इज मीटिंग द एंशिएंट हिंदू ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया thus slowly and silently the leaven has come, the broadening, the life giving and the revivalist movement that we see all around us has been walked out by these forces together. How is it that the ancient Greek is meeting the ancient Hindu on the soil of India? My question is, how is it that ancient Greek is meeting ancient Hindu on the soil of India? Yes. तो हिंदू के सॉइल के अंदर वेस्टर्न आइडियाज आ गए कि नहीं आए ये बताओ हाँ आया मेरा इंटरनेट आ गया है रोज सुबह वेस्टर्न आइडियाज जितने चाहो उतने ही वेस्टर्न आइडियाज भरे पड़े हैं इंडिया में तो और क्या चाहिए तुमको ये वेस्टर्न आइडियाज ठीक आइडियाज तो हैं वो क्या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए जोर से होना चाहिए एग्रेसिव होना चाहिए ये वेस्टर्न आइडियाज हैं और इंडिया कहता है ध्यान करना चाहिए स्वाध्याय करना चाहिए ये दोनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं हाँ हमारे भाई जी मिल रहे हैं लेकिन एंशिएंट ग्रीक को क्यों बोल रहे हैं एंटायर यूरोप भी तो है अमेरिका वो उस समय 100 साल ये 150 साल पहले की बात कह रहे हैं स्वामी जी ओहो अच्छा आज तो ये समझ में हो गया ना ये हाँ महाराज जी समझ में आ गया महाराज जी ग्रीक का मतलब हो गया समझ में आया वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ पर समझ ग्रीक हम तो सारा इंटरनेट देखते हैं वेस्टर्न आइडियाज लेते हैं हमारा खाना पीना हमारा रहना चलना हमारी ड्रेस ये सब तो वेस्टर्न हो गई ना कोट पहनते हैं टाई पहनते हैं वेस्टर्न हो गए कि नहीं हुए हमारे समझ में आया हमारे पास आ गया क्या है हमारे समझ में आ गया तो ये यूनियन तो हो रही है ना इंडिया में हाँ थैंक यू महाराज थैंक यू मैंने एंशिएंट ग्रीक के बदले में हम वेस्टर्न वर्ल्ड आज तो बहुत ज्यादा हो गई है हाँ थैंक यू महाराज जी थैंक यू फिफ्थ क्वेश्चन इज पेज 203 लेट फॉरेनर्स come and flood the land with the armies, never mind, up India and conquer the world with your spirituality. Question is, does it mean that we do not spend money in defense to protect our country? This is something like the Himalayan blunder if we let foreign armies flood our country. I mean, हम लोग अहिंसा ज्यादा स्वामी जी ये अरे स्वामी जी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया के ऊपर कोई आ जावे ये नहीं that is not the idea. अच्छा it is the way in which they is telling it that let West come India Indian thoughts will spread. It does not mean that you don't have army etc. अरे अब तो now the things are completely changed. You are not understanding this. The Swamiji does not want that army that there should be that we should not have army. That is not the point. नॉन वायलेंस प्रीच कर रखे हैं नॉन अरे पॉइंट को समझना चाहिए किसी चीज को कहने के लिए हम बातचीत में कुछ चीज बात कहते हैं और उसका आइडिया दूसरा प्रकार का होता है विचार कई प्रकार के होते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि इंडिया में आ जावे ना इंडिया में बाहर विदेशी आ जावे इससे कल्याण होगा दैट इज द आइडिया इट इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस
Maharaj We ji, have got a big army. No one Maharaj can ji, attack it just now. that is true, Maharaj ji. This 700 years Mughal ruled our country. 200 years अंग्रेज ruled our country. तो स्वामी जी क्या इसको अपोज करते थे ना? 700 मुगल ने रूल किया 700 इयर्स और अपने अंग्रेज ने रूल किया 200 इयर्स, 900 इयर्स का प्रेशर जो हमारा स्वामी जी इसको तो अपोज करते थे ना? हाँ, डेफिनेटली करते थे। वो बार बार कहते थे कि हम लोग नपुंसक हो गए थे, हमारे में शक्ति नहीं थी, इसलिए हो गए हम। तो बार बार कहते थे इस चीज को। तो अच्छा लेकिन वो ये भी कहते थे कि जब भी भारत से बाहर से लोग आवे हैं तो देयर बिकेम ए आउटलेट फॉर, एक चैनल बन गया था जिसके माध्यम से भारत के जो विचार हैं वो बाहर गए, विदेशों में गए। जब कभी इस प्रकार की बात हुई है तब भारत से विदेशों में गए, इसलिए ये कह रहे हैं, यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि विदेशों में बाहर के विचार जाएंगे। ये तुम दूसरे प्रकार से उसको इंटरप्रेट नहीं करो। अच्छा महाराज जी, समझ में आ गया महाराज जी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो है अंग्रेज ने हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम तो को एकदम एक्सटर्मिनेट करना चाहता था। मैं कॉलेज जो आया था तो इन्होंने तो ये तो बाहर से आया हुआ था, तो हमारा सिस्टम तो बाहर जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हिम। सो बट दे वांटेड टू कट डाउन द गुरुकुल सिस्टम एंड देन ऑल एवरीथिंग ऑफ द एजुकेशन, एंटायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतना प्रेशर आया बाहर से, तो ये क्या अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अब ये दिस इज नॉट द क्वेश्चन स्वामी जी इज रेजिंग। You are raising the question, political question. अच्छा ठीक है, ओके। I don't want to discuss that. ओके ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 पेज 208। उसमें these are but different conceptions leading to the final conclusion that both dualistic and monistic conceptions are necessary for the evolution of the mind, and therefore the Vedas preach them. My question is, how is it that both dualistic and monistic conceptions are necessary for evolution of the mind? ये not understood. क्या है ये? अरे आपको क्या, आप अद्वैत समझ सकोगे क्या? जरा सी बात करते हो तो उसको पॉलिटिक्स समझने लग जाते हो। तुमको क्या अद्वैत समझ में आएगा? तुम्हारे लिए तो डिवोल्यूशन ही ठीक है कि भगवान वैकुंठ में रहता है, तुम करो तो भगवान जाओगे, वैकुंठ में चले जाओगे। ऐसा करने से ही तुम्हारा धर्म होगा, तुम्हारा विचार विकास होगा। तुमको कहेंगे कि ध्यान सत्य अहिंसा का प्रारंभ करो, तो ये तुम्हारे लिए जब ठीक ठाक है। लेकिन एक आदमी जब उससे चला गया, वो जानता है कि वैकुंठ जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये सब मिथ्या है, तो वो क्या करेगा? वो बिल्कुल चिंता इसकी नहीं करेगा, वो अद्वैत में जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। किसी के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता है, किसी के लिए मुझे मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, वो उससे ऊपर चला गया है। तो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, तो इसलिए बहुत ड्युअलिस्टिक एंड अद्वैतिक का नेसेसरी। जो तुमने जब पढ़ा है ना, उसके आगे पढ़ो तो, और आगे पढ़ो। आगे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा महाराज जी। तो बात है 208। महाराज जी, ठाकुर ने तो इसलिए हमें पद दिखाया, उन्होंने पहले माँ भवतारिणी को किया, फिर बाद में तोतापुरी के माध्यम बना के वो अद्वैत में गए। अरे उसके बाद में भी तो तोतापुरी के अद्वैत के बाद में भी माँ करके ताली बजा रहे हैं तोतापुरी के सामने। हाँ महाराज, बिकॉज़ फॉर ऑर्डिनरी पीपल ये अद्वैतवादी कैसा अद्वैतीवादी है तो माँ करता है। जब ठाकुर ने कहा था मैं क्यों माँ को नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ूंगा? ये विचित्र बात है। अद्वैत द्वैत दोनों को ठाकुर लेके रहे हैं। हाँ महाराज जी पढ़ूं क्या? तो अद्वैत द्वैत के बारे में कोई क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, समझ में आया महाराज जी, समझ में आया। अरे बाबा, टुडे गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी। I don't know what sort of question it will be there. That उन्होंने बताया कि ये क्या है कि how God, nature and individual souls are related as said in the passage, the whole triangle। इस तरह समझ में नहीं आया।
How God, nature and universe. रिमेम्बर, देखो ये फिलोसफी में you have to have all the three. You have to know what is soul. सोल का भगवान से क्या रिलेशन है, और ये प्रकृति का हमारे साथ क्या रिलेशन है. So in philosophy you have to answer about the nature of philosophy of soul, nature and God, their relation, the goal of life, etc., etc. All these three have always to be discussed. That is the point. अच्छा. अब भक्ति योग पढ़िए स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने very clearly all these three things have been described. Okay, And Maharaj. whenever any philosophy, Advait philosophy also, जीव का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, आत्म ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये डिस्कस करते हैं. तीनों का रिलेशन क्या है, वो अद्वैत कहता है कि तीनों नहीं है, वो एक ही है, ब्रह्म है. तो वो फाइनली दे कम टू द कंक्लूजन. लेकिन जितनी भी फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं उसमें सोल, नेचर एंड गॉड, इन तीनों का डिटेल में डिस्कशन होता है. Okay, thank you, Maharaj ji. Thank you. बस खत्म हो गया, Maharaj ji. Thank you. Your question is clear or not? हाँ, Maharaj ji, thank you. Next. मेरा खत्म हो गया. नहीं, खत्म हो गया, Maharaj ji. खत्म हो गया. Okay. Now, Satish Vig. Satish. सतीश क्या हुआ है सतीश? संजय क्या हुआ? सतीश कहाँ? ये है तो सतीश तो है ना चाहिए. सतीश जी है. कनेक्शन प्रॉब्लम होगा. उसको वो सतीश जी, कराओ सतीश को. सतीश जी आप अनम्यूट कर लीजिए. सतीश जी प्लीज. अच्छा आगे चले, फिर दूसरे को लेते हैं. हाँ दूसरे से लेना. अच्छा रीता आओ तो. रीता हाँ, अन्नपूर्णा पहले क्वेश्चन करेगी. अन्नपूर्णा योर क्वेश्चन फर्स्ट. नमस्ते. योर क्वेश्चन फर्स्ट. प्रणाम स्वामी जी. स्वामी जी क्वेश्चन पूछो. मेरा क्वेश्चन है, अगर भगवान जी ने ह्यूमंस को बनाया है तो ठाकुर भी तो एक दिन ह्यूमन थे ना, उनको किसने बनाया है? भगवान ठाकुर को भगवान नहीं बनाया है. ठाकुर को भगवान नहीं तो बनाया है. भगवान ने भगवान को बनाया. भगवान तो भगवान को बना सकता है ना. अच्छा अन्नपूर्णा मैं तेरे से वेरी सेटिस्फाइड विद. आई विल आस्क यू क्वेश्चन. और सूर्य जो है, अन्नपूर्णा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करूंगा. और सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, वो उत्तर से क्यों नहीं उगता? थैंक यू स्वामी जी. क्वेश्चन की नहीं. सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, उत्तर से क्यों नहीं उगता? मुझे नहीं पता. भगवान की इच्छा है कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगे. भगवान की इच्छा नहीं है कि सूर्य जो है वो उत्तर से उगे. ये ठीक है. ठीक है. अच्छा चलो. So I'll go to my first question, Swami ji. Swami ji, in the article says to open our hearts. What does it mean? And how to open our hearts?
So she had asked the question. तो मैंने इनको जवाब दिया था कि जैसे हनुमान जी ने अपना हार्ट ओपन करके दिखाया था ना, ऐसा हनुमान जी ने कर दिया था, ओपन हार्ट कर दिया। तो वहाँ क्या दिखा? वहाँ दिखा सीताराम। You have seen that photo, famous photo, हनुमान जी का फोटो खींचा हुआ है, सीताराम है वहाँ पे। तो जब तक हमारे हृदय में सीताराम नहीं आएंगे तब तक हम हार्ट को ओपन नहीं कर सकेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। हाँ, वो हार्ट का ओपन हार्ट करने का मतलब है, स्वामी जी को पढ़ो, वहां पे करना है, बिकम टेक इंस्पिरेशन, यू गेट इंस्पायर्ड बाय गॉड। भगवान के प्रेम से, भावना से इंस्पायर हो जाओ और यू हैव टू बिकम ए ऋषि। Practice truth, not merely reading the Vedic or scriptures. आप concept पढ़ लीजिए वहाँ पे जो पढ़ा है स्वामी जी ने। In this context is telling only reading will not do. You open your heart. That means you must realize them, practice and realize the truth and become. Okay. Next question. Next question is page 203. Swamiji says that the best work is when one works for others, which is very true. Yet, while working, often the thought, I'm doing this for my family and so on, arises. How can one overcome these limiting thoughts? You are not clear about this yourself. You are not clear about the question yourself. First, be very clear about it. What is the question? The question is that how can one overcome such limited thoughts when they arise in the midst of work? What type of limited thoughts? Limited thoughts like what type of limited thoughts? Limited thoughts that I'm working only for my family or for my mother or for my father or for my sister or brother, that way. No, so why do you worry about that? You go on doing your work. Why do you worry about the thoughts? Yeah. You have to do the work. Finish. Yeah. Then the third question is, in the whole lecture, Swamiji tells clearly that the work before each one of us is to know the divinity within us. Will the sadhana we are doing make us gradually realize and see the divinity within us? How to progress? No, yes. Agar sincerely you do spiritual practice, the purpose of spiritual practice is to manifest the divinity. Seeing God is also the same thing. When you see God outside, you also know that you are also divine. Seeing God also means seeing God within. Moksha also means to become divine. So the divinity, Swamiji says, moksha is becoming divine. Seeing God is to know your divinity. It is one and the same thing. Swamiji is putting in the different words. Yes, everything is manifestation of divinity. Yes. Be very clear about it. Yes. Now I'm clear. अब कौन बचा? दिलीप भाई जी, तुम तो बसते भागते रहते हो। आ जाओ जरा मैदान में। चले आ जाए। महाराज जी फर्स्ट पेज पे ही है, तीसरी लाइन। The Vedanta truth was first discovered when the Vedantic truth was already there with the creation of the world. Then what was the necessity of discovery and who discovered and how? It cannot be discovered in a scientific laboratory like then where it was discovered. यहाँ पे discovery क्यों बताया गया? My question is. अच्छा पहले ये बताइए
वो ये न्यूटन ने हाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया था। ग्रेविटेशन का लॉ है ना, हाँ बराबर ऊपर जमीन पे पत्थर फेंको तो नीचे गिरता है, ऊपर पानी हवा में नहीं जाता। जी क्यों? वो ग्रेविटेशन के लॉ से। जी तो ये डिस्कवरी की थी न्यूटन ने। हाँ इसकी जरूरत थी क्या? ये बताइए, उसकी जरूरत थी क्या? न्यूटन ने ग्रेजुएशन के, और हम इतना उसको बहुत बड़ा मानते हैं, इसने डिस्कवरी कर दी। अरे ये तो सामान्य चीज है, पानी फेंको तो नीचे ही जाएगा, पत्थर फेंको तो नीचे ही जाएगा। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने डिस्क्राइब, उसको पता लगा लिया और उसका हम बहुत नाम कर रहे हैं। जरूरत था क्या उसकी डिस्कवरी की? वो तो अलग ही है। हाँ अरे भाई, संसार की सैकड़ों नियम चल रहे हैं, सारा संसार जी, अनेक जी, अनेक जी। नियमों के अनुसार चल रहा है। सूर्य पूर्व से उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये लॉ है। जी उसको हाँ तो डिस्कवर किया। सूर्य के संबंध में कितनी सारी डिस्कवरी की है, वो तो है, ऑलरेडी है। जी तो मेरा फिर वही भी डिस्कवरी करते हैं, तो क्या प्रश्न क्या है? ये तो नहीं डिस्कवरी तो तो हो मेरा गई, प्रश्न ये है हमारे ज्ञान की वृद्धि होगी, हमारा अच्छा ज्ञान वृद्धि हो गई। ओके इट इज फॉर आवर नॉलेज द थिंग वाज इट इज नॉट ए ऑलरेडी क्वेश्चन। हम वी वांट टू नो, हम तो जा रहे हैं। बच्चा जी। पूछता है, बच्चा पूछ रहा है ना, तुम हाँ। जाओगे रास्ते में, बच्चा तुम्हारा पूछेगा, तुम बच्चे थे तो बाबा बेबा पापा ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पूछता है कि नहीं बच्चा कंटिन्यूअसली? ठीक करेक्ट करेक्ट राइट महाराज जी तो इसके बिल्कुल द्वारा वो जानना चाहता है, ज्ञान जी। प्राप्त करना चाहता है। तो व्हाई डू यू आस्क दिस क्वेश्चन? जी राइट महाराज। सेकंड क्वेश्चन का तो जवाब आ गया है। द नेशनल फैकल्टी बिकॉज सो मच एग्जैगरेटेड दैट इट डिग्रेडेड इटसेल्फ, ये तो पूछ लिया है। अब पेज 196 पूरा जो पेज है उस पे लिखा हुआ है स्वामी जी ने। तो मेरा उसके अंदर सवाल ये था कि स्वामी जी का लेक्चर या आर्टिकल और पतंजलि योग सूत्र में कॉन्ट्राडिक्शन है। नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आई मे टच यू और यू टच मी, आई वियर दिस क्लोथ और दैट क्लोथ, हाउ इट मैटर्स। व्हाइल पतंजलि योग सूत्र वेरी क्लियरली इन अष्टांग योग रिटर्न्स कि आपको ये करना चाहिए। और ये ऐसा लिखा है कि इसे के लिए कपड़ा नहीं छूना चाहिए, ऐसा लिखा है क्या? कपड़ा छूने की बात लिखी क्या पतंजलि योग सूत्र में? नहीं, पर डर्टी कपड़े पहनकर ही नहीं करना है, दैट इज दैट। तो इसलिए ये जो बताते हैं कि ये कपड़े पहनो, ये पहनो, ये नाक से श्वास लो, ये नाक से श्वास लो या इस नाक से श्वास लो। इट हैज बीन साइंटिफिकली Patanjali Yoga Sutra said that you have to take from the first left and the right and then something like that. It is आप मैं ये सिर्फ जानना है। स्वामी विवेकानंद का I'm not contradicting. विवेकानंद का राजयोग पढ़िए। स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्या की है जी और सभी बातों को स्वीकार किया है। दूसरे संदर्भ में कहा है, दक्षिण भारत में है तो हाँ। वो अगर शूद्र पास में चला जाए तो घंटा बजाते, कहते शूद्र को घंटा बजाते, छूना मत छूना मत छूना मत। जी स्वामी जी इस चीज को गाली दे रहे हैं। पढ़िया ये दक्षिण भारत में था, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय से 2 हाथ दूर रहते थे, छूना मत छूना मत। स्वामी जी ने इस चीज को गाली दी है। डोंट टचिज्म, यही हो गया है और कुछ नहीं है। धर्म जो है वो छुआछूत में हो गया है, इसको गाली दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद। वो स्वामी विवेकानंद राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गंदे आदमी को जाके आलिंगन कर लो। वो एक संदर्भ में कहा है उन्होंने। अब बहुत अति हो गई थी, एक्सट्रीम हो गया था जी। हाँ, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये सब क्या लगा रखा है, पागलपन है ये। ओके राइट। अब महाराज जी एक छोटा इसके सप्लीमेंट्री ये आया है, मैंने अभी हिंदी में पढ़ा, जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली है, ये भी स्वामी जी ने बताया है। तो ये कौन सी जाति के लिए बात कर रहा है? क्या जाति की सारी मौलिकता नष्ट हो चली है? राष्ट्रीय, यहाँ पे क्या कहा है, भारत की राष्ट्रीयता, जाति का वो यहाँ पे वो जो अनुवाद है ना,
नहीं वो महाराज जी, ये डिग्रेडेशन के लिए बोले हैं, दिस इज अ डिग्रेडेशन के हमारे लिए। देश का सारी भारतीय जाति की, भारतीय जाति, अच्छा, हमारी मौलिकता नष्ट हो रही है। कोई जाति हाँ। या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, सारी जी। भारतवर्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा, ह्यूमन रेस। ओके, हाँ, ह्यूमन रेस, यस, ह्यूमन रेस हो, भारतवासी की। हाँ। right महाराज। Okay, now my next question. The Mohammedan conquest gave us many good things. What are they? And please elaborate. ये क्या अच्छी चीज क्या? मोहम्मदन ने हमको क्या अच्छी चीज दी है? जो स्वामी जी ने लिखा है, द मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट गेव अस मेनी गुड थिंग्स। ये तो सबसे रद्दी जाती है दुनिया की हमारे लिए। हम जो है ना लीला सूफी संत चरित किताब जो है ना, हाँ, 100 बार पढ़ी है मैंने। पढ़ो, इसको पता चलेगा कैसी कैसी 100 बार पढ़ी है मैंने सूफी संत चरित। मेरे पास इंटरनेट में है और मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी भी है। तुम चाहो तो इंटरनेट भेज दूंगा तुमको, पढ़ना उसको। मिस्टिक, मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, ये भी अवेलेबल है। पढ़ो, पता चलेगा कितनी महान है ये हिंद मुस्लिम जाति। बाहर से देख रहे हो, हमारे तो मुस्लिम दोस्त भी तो थे। रामकृष्ण मिशन में मुस्लिम साधु भी हैं, दीवानी करके है, वो मुस्लिम है। तो ऐसा क्यों समझते हो? पढ़ो ना, उसमें कितनी निष्ठा होती है उन लोगों में, कितनी एक दूसरे से भाईता की बात होती है। ऐसा वहां जातिवादी नहीं है, मत छुओ मुझ छुओ, वहां पे नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं मुस्लिम उसमें की बस। और एक किताब अगर चाहे आप तो एक गीता प्रेस नहीं, गीता प्रेस गोरखपुर नहीं है, और सस्ता साहित्य मंडल ने एक प्रकाशित किया है, धर्म क्या कहता है, बुकलेट्स है ना, बचपन पढ़े थे कि नहीं? धर्म क्या कहता है, तो उसमें ईसाई धर्म क्या कहता है, हिंदू धर्म क्या कहता है, इस्लाम धर्म क्या कहता है, यहूद धर्म क्या कहता है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बुकलेट्स हैं। तो एक हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बुकलेट में पढ़ना, इतनी अच्छी चीजें पता मिलेगी तुमको कि बस, अरे तुमको लगेगा अरे वाह, इतनी अच्छी अच्छी किताब सभी धर्मों में है। ये तो गालियां, ऐसा है, किसी ने कहा, मैं तो पिछली बार ही तो कहा था, हिंदू लोग, तुम्ही ने पूछा ना कि मुसलमान मारते हैं, तो हिंदू लोग भी तो मारते हैं, मुसलमान दूसरे धर्म के मारते हैं, हिंदू लोग अपने धर्म के लोगों को मारते हैं। बताया था ना, कल बात हुई थी। महाभारत में तो कृष्ण ने सबको ही मार डाला। हाँ, अपने रिश्तेदारों को ही मार डाला। हाँ, तब दूसरों को गाली देना बहुत आसान। महाराज चलो भैया, नेक्स्ट सवाल। But still I can say I am not satisfied with this. नहीं, unless listen, दिलीप भाई। हाँ जी महाराज, very true. I am talking. सूफी संत चरित किताब पढ़े बिना तुम सेटिस्फाई नहीं होगे। अच्छा, मैं पढ़ने डिफिकल्ट किताब है। जी मैं 100 बार पढ़ चुका, मैं ठीक बता रहा हूँ तुम। जी, बस मैं पढ़ने के बाद डिस्कस करूंगा। ऐसे में कहाँ मिलेगा? मुस्लिम सेंट्स एंड मिस्टिक्स। यस, है मेरे पास है जी। My now next question is, when Swamiji talks about every building, every piece of furniture and buildings and their output prosperity, does it not drag us towards Maya? स्वामी जी ये कह रहे कि ग्रीक के ये देखिए, ये देखो, वो देखो, ये सब हमको माया में बंधन ले जाएंगे। अरे तो मत देखना, तो तुम माया से निकल जाओगे। नहीं देखने से माया से निकल जाओगे क्या? नहीं, ये यानी स्वामी जी किस स्वरूप में बताना? देखो याद रखना। हाँ, संदर्भ में बात करनी है। हाँ, वो वही जब खाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तब भी हम माया में पड़ते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो भी माया में हैं, बुरा काम करते हैं तो भी माया में ही हैं। तो याद रखो, अगर माया से निकलना है तो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम बिल्डिंग भी देखेंगे, फिर याद रखो तुमको मीठा खाना भी नहीं मिलेगा, तुमको सब कपड़ा खाना पीना मिला के खाना पड़ेगा। ये तुम किस संदर्भ में, एक संदर्भ भिन्न संदर्भ में बात कर रहे हैं। स्वामी जी जब भारत की बात कर रहे हैं तब भी तो माया की बात कर रहे हैं। ये तो माया ही है। भारत की दरिद्रता की बात कर रहे हैं, ये तो माया ही है।
जी, और जी, उसके तुलना में वो ग्रीक की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ये हाँ। भी माया है। तो फिर स्वामी जी क्या कह रहे हैं, भारत का उत्थान करना, तो ये भी तो माया हुई। हाँ। ये बताओ, भारत का उत्थान करना ये तो माया हुई ना। हाँ, और कैसे उत्थान करना, अरे ग्रीक लोगों ने जैसे किया उसके अनुसार करना, तो ये भी माया हुई। देखो पॉइंट को, जो एक चीज है उसको दूसरे से मिलाओ मत। यहाँ जी, भारत, जो स्वामी जी भारत के विशेषता या विदेशों की विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, इसमें माया का चक्कर मत लाओ। ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, और ओके, स्वामी जी नेशनल क्वेश्चन कर रहे हैं, सामाजिक बातें कर रहे हैं। उस समय आप फिलोसॉफिकल बातें मत लाइएगा, ओके, तब प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन। जी, जी, बराबर महाराज जी। तो उसका बाद वाला भी सवाल मेरा वो का वही है, द फर्स्ट मैनिफेस्ट इफेक्ट ऑफ लाइफ इज एक्सपांशन, सो इज इट नॉट ए मटेरियलिस्ट एक्सपांशन? वही बात होगी नेक्स्ट। हाँ, अरे वो का वही मटेरियलिज्म, हाँ, हाँ, अरे अभी खाना आप बनाना है, खेती का बढ़ाना है, तो मटेरियलिज्म होना ही पड़ेगा। जी, गरीब लोग मर रहे हैं, एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तो मटेरियलिज्म है। यहाँ फिलोसफी मत लाओ, स्पिरिचुअलिटी मत लाओ। there, right, okay. Next question. The religion and philosophy, wherever go in any race, like Christianity, Mohammedan, and other races, they spread quarrels and bloodshed. What I think, am I correct? महाराज जी, यहाँ पे ये रिलीजन आया है पिक्चर में, कि जहाँ आप रिलीजन की बात करते हो तो वहां पे ब्लडशेड्स भी हो रहे हैं। अरे तो वो धर्म युद्ध ही तो मैं तो बोलते रहा हूँ तुमको, जी, महाभारत तो धर्म युद्ध ही था ना, हाँ, तो वहां ब्लडशेड हो गई। तो महाराज जी ये बराबर सामाजिक लेवल में धर्म का मैनिफेस्टेशन में सब चीजें आएगी। हाँ, बदमाश लोगों को मारना पड़ेगा, आतताइयों का वध करना पड़ेगा, ये धर्म में लिखा है। जी, आतताई का वध करना धर्म में लिखा है। जी, और मुसलमान भी कहते हैं कि हिंदू को वध करो, हमारी शास्त्र में लिखा है। हाँ, और हिंदू कहते हैं कौरव का वध करो, बदमाश हैं। तो युद्ध जो है ना, हाँ, वो धर्म का एक अभिन्न अंग रहा है, याद रखो हमेशा, और अभी अभिन्न अंग रहेगा। जी, right. So now my next question: without improving ourselves, how can we improve others? And why should we improve others? महाराज जी, यह आर्टिकल में लिखा है पेज नंबर 203 में, but I tell you in plain language that you work best when you work for others. हाँ, इसका क्या मतलब? तो क्या तो हाँ, नहीं, when you work, महाराज, my question is, इसमें ये लिखा when you work for others then you work best. अब करके देखो ना, तुम हमारे लिए जो काम करते हो ना, कितना बढ़िया काम करते हो। हम जो भी काम कहते हैं, तुम तो बहुत बढ़िया कर देते हो हमारा काम। गरीबी को सेवा करने का कोशिश करो, तुमको देखो कितना जोश आ जाता है। जितना हम दूसरों के लिए करेंगे, उतना हमारा बहुत बढ़िया काम होगा। अच्छा, yes. बच्चा भी जो है ना, माँ भी जो है ना, खाना बनाती है तो देखती है कि एक आदमी आया है, गरीब आदमी आया है, तो वो क्या करती है, वो देखती है कि मैं अच्छा दूं, तो अपना अच्छा खाना दे देती है, उसको अच्छा लगता है। जी, दूसरों की सेवा करने में हमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अगर नहीं लगता है ना, तो तुम जो है वो एक भयानक आदमी हो। लोग अपना खाना छोड़ के दूसरों की सेवा करते हैं ना। हाँ, जी, 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 खाना दूसरे को देते हैं। हाँ, 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 जी महाराज। हाँ, राइट महाराज, एक मिनट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तरुण चौरसिया जी हैं, मैंने उनको को होस्ट बना रखा है कि इन केस ऑफ किसी दिक्कत में तरुण उसको हैंडल कर पाएंगे संभवतः। यंग है, उनको पता होगा शायद, इसलिए। दूसरा, सतीश विग साहब ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप याद रखेंगे उनसे भी बाद में पूछ लीजिए।
कीजिएगा। अच्छा मैं ओके हूँ ओके पर सतीश कभी जी को कभी भेज देंगे। दिक्कत ओके हो ओके सकती ओके है जी। अच्छा, प्रणाम। अच्छा Maharaj, my next question is, the article says superstition, but how to know and find out what is religion and what is superstition? How to क्या distinguish? क्या क्या It's a है? very thin line. सुपरस्टिशन और रिलीजन में फर्क कैसे करेंगे? वो वेरी डिफिकल्ट It's a क्वेश्चन। very thin line. It's a very thin line. यानी ऐसा है कि हमने विष्णु भगवान की पूजा करने लग गए, ये धर्म हो गया, ये सुपरस्टिशन है कि नहीं? तो भगवान विष्णु भगवान है कि नहीं? अच्छा, तो ये अधिकांश जो है ना, दुर्भाग्य ये है, रिलीजन और सुपरस्टिशन इतने मिले हुए होते हैं कि उनको अलग करना बहुत कठिन होता है। yes. ये इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग जो है तो मंदिर नहीं जाते, अरे क्या मंदिर है, पत्थर की मूर्ति को भगवान भगवान कर रहे हैं, ये तो सुपरस्टिशन ही है। हाँ, और लेकिन रामकृष्ण जैसे लोग वो पत्थर की मूर्ति करके ही सिद्ध हो गए। जी, तो जिसको तुम मूर्ति सुपरस्टिशन कह रहे हो, उसी को सिद्ध करके वो धर्म हो गया, सबसे बड़ा धर्म हो गया। yes. तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है, पॉइंट रेस किया है उन्होंने। महाराज जी, वो सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, I would हाँ। rather see every one of you rank atheist than superstition. Fools, for the atheist is alive and you can make something out of him. But if superstition enters, the brain is gone, the brain is softening, degradation has seized upon the life. हाँ, तो वही तो है। इसलिए स्वामी विवेकानंद अगेंस्ट थे, यानी इसलिए समस्या होती थी। स्वामी जी नहीं जान, कभी कभी तो है ना, बहुत ही कट्टर हो जाते थे। हाँ, कि अपने गुरु भाइयों से भी झगड़ा कर देते थे। जी, ओके, ये क्या क्या तुम क्या सुपरस्टिशन बना रखा है, गुरु okay. भाइयों से भी झगड़ा कर देते। Okay. My next question. Died out of India in the same way as the name of Buddha has done. Maharaj ji, here, if it is so, then why Buddhism stands to the time for the hundreds of years in Japan, Sri Lanka and other small क्या क्या फिर से पढ़ो तो, क्या है बोलो, फिर से पढ़ो तो। पहले भी ये आया था, died out of India in the same way as the name of Buddha has done. So my question is, ये बुद्ध धर्म इंडिया से वेनिश हो गया है, ये स्वामी जी ने लिखा हुआ है। So my question is कि महाराज जी, if it is so, then why Buddhism stands to the time for hundreds of years in Japan, Sri Lanka and other small countries? Further, what is Buddhism? That Swami नहीं, सुनो हाँ, इंडिया से बुद्धिज्म क्यों गया मालूम है? हाँ, नहीं, उसका बहुत भयानक करप्शन हो गया था। यानी वो व्यभिचार हो रहा था अपने मोनास्ट्रीज के अंदर। यानी मोनास्ट्रीज में घना भयानक व्यभिचार होता था। व्यभिचार अब समझ लो क्या बोलना नहीं चाहता हूँ मैं। सेक्स की प्रॉब्लम भयानक हो रही थी, इसलिए वो रह नहीं सका यहाँ पे। उसको शंकराचार्य ने आके भगा दिया, निकाल कर। ये बात ओके, राइट। अब बाहर गए, यहाँ से बुद्ध के जो आचार्य लोग थे वो बाहर गए और उन्होंने धर्म चालक किया, जापान में, चीन में और सब जगह धर्म बुद्ध फैल गया। तो दैट इज द कारण। पर महाराज जी, उनने भी वहाँ पे कोई अच्छाई है बुद्ध धर्म में देखी होगी? नहीं, अच्छाई तो है ना, बौद्ध धर्म में अच्छाई तो बहुत है, बहुत सारी अच्छाई है। यानी उसका नाश हुआ क्योंकि करप्शन हो गया। क्या है, बुद्ध ने तो सबको स्वीकार कर लिया ना। उन्होंने जाति तो नहीं मानी। तो एक किसान आया, वो भी आएगा मैं बुद्ध बनूं, बन जाओ। एक आदिवासी आया, बुद्ध आया, बन जाओ। अब उनके तो वहां पे जो नैतिकता के तो आइडियल नहीं है, कोई जाति नहीं है। ये किसी भी लड़की के साथ प्रेम कर लिया, ये कर लिया, वो सब गड़बड़ हो। इसके कारण भारत में बहुत भयानक पतन हुआ था। यानी ऐसी गंदी गंदी कहानियां हैं कि बस। अच्छा। और तब इसको जाना पड़ा बुद्ध को यहाँ, बुद्ध। अच्छा। लेकिन बुद्ध तो धर्म तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं।
जी, हमारा सनातन धर्म ने इसको विदा करा यहाँ से। नहीं नहीं, अब तुम उसको अलग करो ना। सनातन धर्म ने उनको विदा किया नहीं, वो तो भयानक हो रहा था ना। अच्छा जी धर्म जी के नाम पे इतनी भयानक चीजें हो गई थी, इसलिए इसको क्या कि डंडा मार के हटाओ इस चीज को। ओके जी जी हाँ। ओके। हाँ, मेरा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है। Going to the temple becomes tantamount to spiritual life. Giving of something to a priest becomes tantamount to religious life. These are dangerous and pernicious and should be at once checked. Yes, Swami ji ka sentence. हाँ, वो जरा Then what we do to go to ashram, temple and give pranami? What should be? It should be checked immediately. वो जरा सावधानी से दिया करो बाबा। और ब्रह्मेशानंद को जो प्रणामी भेजते हो ना, जरा सावधानी से भेजा करो। बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली, लिखा है इन्होंने। ये नहीं समझते हो कि वो साधु हैं, उसको पैसे से क्या करना, उसके बाद में पैसे के कारण डिफिकल्टी होती है। कहाँ रखूं, क्या करूं, जहाँ दूं। तुम डायरेक्टली दान कर दो बाबा। हमारे क्यों दान करते हो? ये भक्त लोग जो हैं वो साधुओं को बर्बाद कर देते हैं। हाँ, इसलिए ये है ना, पैसा देना और मूर्ति की पूजा करना और ये कुछ चढ़ाना बढ़ाना, ये सब जो है ना, ये छोटी सुपरफिशियल चीजें हैं। मन का भाव ज्यादा जरूरी है। अगर दान करना है तो रोगी नारायण को देख के और उसको पैसा दो, उसको भगवान समझ के उसको पैसा दो। तो तुम्हारा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये कि क्या सब करना है ना, ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। हाँ, ये और वर्क so Swamiji has given more importance to social work rather than going to temple and worship. डेफिनेटली। तो ये भगवान रोगी नारायण जो है वो ज्यादा बड़ा टेम्पल है जी। वहाँ तो लिविंग मूर्ति है ना। हाँ, मंदिर के अंदर तो पत्थर की मूर्ति है, जी। तो हॉस्पिटल में तो लिविंग मूर्ति है। यस, जीवन जागृत है। पत्थर की मूर्ति के सामने अगर आप दो दिन पहले की खीर भी चढ़ा ना, तो पत्थर की मूर्ति कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन खीर यहाँ पत्थर के एक रोगी नारायण को दो तो वो क्या करेगा? उसके कहेगा बदबू आ रही है इसके अंदर। जी। पूजा कैसी भी करो मंदिर में, कोई भगवान मूर्ति बोलती नहीं है। और रोगी नारायण को कैसी भी मूर्ति पूजा करो तो चिल्लाने लग जाएगा। तो डेफिनेटली सुपीरियर है ये। ओके, राइट। बस महाराज जी, राइट, बिल्कुल। प्रणाम। आ जाओ सतीश। प्रणाम महाराज। आ जाओ। वो नेट की प्रॉब्लम हो रही थी महाराज। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज पेज 206 207। all the other religions depend on some person or persons. All the other religions have been built around the life of what they think an historical man, and what they think the strength of religion is really the weakness. For disprove the historicity of the man, and the whole fabric tumbles to the ground. Thus, our allegiance is to the principles always करो तो आवाज नहीं आ रहा है, किट हो रहा है। persons, but the embodiments, the illustration of the principle. But my question is, ये जो स्वामी जी ने कहा है, not on persons or personalities, क्योंकि पर्सन और पर्सनैलिटी की अगर हिस्टोरिक उसमें डाउट क्रिएट हो जाता है तो रिलीजन भी उसका वो डामाडोल हो जाता है। तो मेरा कहने का क्वेश्चन ये है कि देयर मे बी सम रिलीजन्स वो फ्लोरिश ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन एंड पर्सनैलिटीज, चाहे उनमें प्रिंसिपल्स तो कुछ लोगों में दे आर कन्फाइंड टू सम पीपल, बट टू द मासेस इट इज द पर्सन और पर्सनैलिटी जो है वो लोग जिसमें अट्रैक्ट होते हैं, जिससे वो पूजा करते हैं। बिल्कुल ठीक बात कही तुमने। मासेस के लिए बिल्कुल ठीक है। जी, अरे राम हुए कि नहीं, कृष्ण हुए कि नहीं, ये तो पता ही नहीं है। नहीं जी। लेकिन कहानी बन गई है, लोग मानते हैं और उससे धर्म हो रहा है।
धर्म हो रहा है। ईसा मसीह को भी मान लिया, जी लेकिन एक बार कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों ने प्रूव किया कि ईसा मसीह जैसे कोई व्यक्ति हुए ही नहीं थे, हिस्टोरिकली जी प्रूव कर दिया है। जी कुछ महाराज, जी लोगों ने महाराज, तो बाइबल की एक एक लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, ऐसे भी हुए जी हैं। महाराज, जी महाराज, तो क्रिश्चियन लोग घबराने, क्रिश्चियन प्रीस्ट लोग घबरा जाते हैं कि जी हम कहीं महाराज, जाएंगे तो क्राइस्ट की बात करेंगे तो वो तो बोलेंगे कि तो आप क्राइस्ट तो रहेगी नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है। जी क्योंकि महाराज, वो तो क्या है कि पर्सनैलिटी बेस्ड ही रिलीजन है, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट। जी जी महाराज, जी महाराज, जीसस की पर्सनैलिटी के बिना क्रिश्चियनिटी टिकेगा ही नहीं। लेकिन जी हिंदू महाराज, धर्म में ऐसा नहीं है। जी हिंदू धर्म में अवतार रहे न रहे नहीं, हिंदू धर्म चलेगा ही। चलेगा। प्रिंसिप, इट इज प्रिंसिप बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। तो दोनों साइड ट्रू है। एक तो दोनों ये है साइड, कि पर्सनैलिटी की आवश्यकता है जी महाराज, और प्रिंसिपल की भी आवश्यकता, दोनों चाहिए, एक करने से दोनों काम नहीं चाहिए। चलेगा। The masses and they follow the personalities, but the principles are confined to some people who are really serious about the religion, or really sincere about the religion. क्या हुआ महाराज? महाराज मैं कह रहा हूँ कि जो personalities are necessary for the masses, सुनाई नहीं दे रहा। but principles are आवाज confined to बंद some करके people. करो, बंद They, करके ऑन करो, फिर से जी महाराज, बंद करके फिर ऑन करो, तुम्हारा की सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। जी महाराज, ऐसे नेट ऐसा ही है मेरा थोड़ा। महाराज मेरे कहने का मतलब ये था कि जो पर्सनैलिटीज आर नेसेसरी फॉर द मासेस, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर कन्फाइंड टू सम पीपल, दे डू नॉट कम इन द ओपन, सभी लोगों के लिए नहीं है वो, दे ओनली फॉलो द पर्सनैलिटी। हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने कहा दोनों ठीक है, मैंने मान लिया ना, आई एग्री टू योर पॉइंट। जी जी, तो उस पर्सनैलिटी से जो रीजन है वो फ्लोरिश होते हैं। जी जी महाराज। अरे रहने दो ना, जो जी, जी, महाराज। मासेस हैं उनके लिए पर्सनैलिटी चाहिए, रहने दो। चाहिए। व्हाट इज द डिफिकल्टी, व्हाट इज योर क्वेश्चन नाउ? That- बोथ आर नेसेसरी। next question, Maharaj. Our scriptures are the best preserved scriptures in the world. महाराज स्वामी जी ने कहा है कि हमारी स्क्रिप्चर जो है वो देर आर नो इंटरप्रिटेशंस। तो माय क्वेश्चन इज, in some cases there are some interpolations. For example, in the Bhagavad Gita कुछ इंटरपोलेशन तो है कि उसमें देयर इज वेरी प्रोफाउंड फिलॉसफी, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो दे डू नॉट टैली विद द प्रोफाउंड फिलॉसफी। हाउ कैन यू से दैट? मतलब जैसे उसमें मैंने कुछ आंसर्स भी दिए हैं उसमें, जैसे उसमें विश्वरूप दर्शन बोला। हाँ जी जी महाराज, विश्वरूप दर्शन ना, विश्वरूप दर्शन है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ ब्रह्म, लाइफ ऑफ ब्रह्म एंड लाइट ऑफ ब्रह्म। उसमें आपको क्या, उसमें उसको क्या आपत्ति है आपको? जैसे महाराज, जैसे विश्व रूप में अर्जुन उसको देख के डर रहा है, और उस विश्व रूप के जो एक फिजिकल फॉर्म बताया है, तो वो कहता नहीं जी महाराज, कृष्ण भगवान को कह रहा है कि आप अपना वो चक्कर गदा चार भुजा रूप ही दिखाइए, मुझे तो वही अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें जो है दे आर थोड़ी डिफरेंट फ्रॉम द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वेदांता ऑफ द गीता। वो सतीश के अनुसार भगवान भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वेदांत के अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, विश्व रूप दर्शन का अर्थ यह है कि भगवान सर्वत्र हैं, वेदांत भी यही बात कहता है। जी जी जी, जी। और अर्जुन का डरना यह है कि सर्वत्र भगवान को प्राप्त करने से हम सब डर जाते हैं, सभी जगह भगवान है, हम सब डर जाएंगे। क्या बात है? ये तो इंटरप्रिटेड, तुमको ऐसा नहीं लगता है? शास्त्रों में शास्त्रकारों ने अच्छी तरह इंटरप्रेट करके समझा दिया है सब चीजों को वेदांत के अनुसार। अच्छा जी महाराज, ये सिंबॉलिक बातें हैं जो उसमें कही गई हैं। बहुत सी बातें हैं।
ये जो ये है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, कहने का मतलब ये है। नहीं, ऐसा है कि अलग अलग, अब यूं तो कह सकते हो कि अर्जुन और कृष्ण हुए भी कि नहीं हुए, स्वामी जी स्वयं उठाते हैं इस पॉइंट को, उससे क्या फर्क पड़ता है? जी महाराज जी। तुम नहीं मानो तो मान, कह रहे अर्जुन कृष्ण तो हुए ही नहीं है, गीता को क्यों मानूं मैं? तो मत मानो। नहीं महाराज ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कुछ जो जितनी प्रोफाउंड फिलॉसफी है उसमें, लेकिन कुछ चीजें जो है वो, जैसे कि उसमें कास्ट सिस्टम के बारे में बोल यही रहा तो है। कहा है कि प्रोफाउंड फिलॉसफी में कुछ चीजें हैं जो सतीश जी को पसंद नहीं आती, लेकिन प्रोफाउंड फिलॉसफी के फिलोसोफर उसको आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। जी मैंने जैसा कहा ना कि विश्व रूप, जी महाराज। तो विश्व रूप तो सब कहते हैं कि सर्वत्र भगवान का है, ये फिलॉसफी प्रोफाउंड फिलॉसफी ही तो है, उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जी जी जी। श्री रामकृष्ण ने ठाकुर को स्वामी विवेकानंद को प्रकट स्पर्श कर दिया था, जी तो महाराज। सर्वत्र उनको भगवान दिखने लगा था ना। जी जी महाराज जी महाराज, पर उनका भयंकर रूप दिखाई दिया था, उनको अर्जुन को भयंकर रूप दिखाई दिया था भगवान का। नहीं तो उसमें क्या हुआ? भयंकर रूप है तो क्या हुआ? कि भगवान क्या भयंकर रूप नहीं हो सकता क्या? तुम्हारी फिलॉसफी के अनुसार भगवान भयंकर नहीं रूप नहीं हो सकता है, ये तुम्हारी फिलॉसफी है, सतीश की फिलॉसफी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन वेदांत कहता है कि भयंकर भी हो सकता है और उदार भी हो सकता है, करुणामय भी हो सकता है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते? जी महाराज। इच्छा के, हमारे इच्छा के विरुद्ध जाता है तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं, ये फिलोसॉफिकली ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंटरपोलेशन है। कोई ऐसी बात नहीं है। जी महाराज, देयर इज नो इंटरप्रिटेशन। नो नो नो। जी महाराज। ठीक महाराज, प्रणाम महाराज, प्रणाम। अच्छा, अब कोई बचा? कोई बचा कि नहीं? सभी बचे हुए हैं महाराज। हैं? सभी अरे हैं। दिलीप भाई, अच्छा भामरी जी प्रश्न करो, भामरी जी। अब बच गए नहीं, भामरी जी। सभी है, यह कोई भी नहीं है, ऑल आर देयर। मोहिंदर है कि नहीं? सभी है महाराज, ऑल आर देयर। अच्छा, वो मोहिंदर क्या प्रश्न था हमारा? तुम क्या बोल रहे थे ना, एक कुछ बात कही तो तुमने, मैं सोचा तुमसे बात करूंगा। शिवानी आ गई क्या? जी महाराज, शिवानी जी आ गई। शिवानी, कैन शी टॉक? संजय देखो तो शिवानी बात कर सकती क्या? हाँ वो है। पूछो। हाँ, अनम्यूट कर लिया। हाँ भाई बोलो। हेलो, कैसी है माँ की तबीयत? हाँ ठीक है महाराज। अच्छा पूछो। मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, थोड़ा सा रश है यहाँ पर। आप महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 198। यू मस्ट एक्सपैंड इफ यू वांट टू लिव, but if we are leading a spiritual life, then this expansion will work as a distraction, I think so please guide us now। इसे ये स्वामी जी ने सोशल एक्सपेंशन की बात कही है। ठीक है, यानी तुम गरीबों को पैसे नहीं दोगे बिकॉज इससे करने से हम एक्सपांड हो जाएंगे, लोगों की सेवा करने से हम एक्सपांड हो जाएंगे, इससे हमारी बाधा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक्सपेंशन का मित्र है कि दूसरों को अपना समझना, दूसरों की सेवा करना, दया करना, ये इत्यादि। तो ये तो सद्गुण है, उसके अनुसार हम एक्सपांड करते हैं। और केवल ध्यान करते रहेंगे तो उससे नहीं होगा। और रियल ध्यान यदि होवे तो आप ऐसी लेवल पे आएंगे, तब आप दूसरों की सेवा की बिना रह नहीं सकेंगे। वो पहवारी बाबा जो थे वो तो एक्सपांड नहीं किए थे, लेकिन चोर भी आ गया तो उसके पीछे भागे थे उसकी सेवा करने के लिए। वो सांप और बिच्छू वगैरह को भी भगवान समझते थे, उनकी भी सेवा, उनको भी मारते नहीं थे। तो दिस इज आल्सो एक्सपांशन। व्हाट यू सजेस्ट इज, अनलेस देखो ठीक अगर साधना हो जाएगी तो नेचुरल एक्सपांशन होगा।
और उसके अलावा सेवा, दया, ईर्ष्याक्ति ये करना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी हमें सावधान रहना चाहिए। वन हैज टू बी केयरफुल। यू गो ऑन सर्विंग अदर्स, तो अब बहिर्मुखी वृत्ति नहीं हो जावे, ये ध्यान रखना। योर पॉइंट इज करेक्ट। ओके, हाँ, मतलब कि सत्कर्मों के लिए हमें हमेशा रेडी रहना है, उसके लिए एक्सपेंशन करना चाहिए। एक्सपेंशन तो करना चाहिए। ठीक है महाराज। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 203, spirituality must conquer the West. How can this be possible? Like, matlab, I was unable to understand what kind of spirituality they are talking about, like how it can expand, how it can conquer the West. कंट्रोल द वेस्ट, क्या है वो? Spirituality must conquer the West. इसी, हाँ, तो भारत में कितने, विदेशों में कितने रामकृष्ण मिशन के सेंटर्स खुल रहे हैं कंटिन्यूअसली। वैसा चाइना का पता नहीं, लेकिन कई सेंटर्स हैं। जापान में सेंटर है, अपने भारत के हिंदुइज्म के कितने सेंटर्स हैं। रामकृष्ण मिशन के सेंटर्स के अलावा हिंदू इतने सेंटर्स आजकल सारे विश्व में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यूरोप में जैसे मैंने कहा ना, परमहंस योगानंद के कई सेंटर्स हैं, भारत के कई सेंटर्स हैं, अमेरिका में। मेरा पॉइंट ये था कि किस तरह की स्पिरिचुअलिटी, मतलब वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी। अच्छा, मतलब सभी नहीं, चीजें, मैं आत्मा हूँ, ये दैट इज द आइडिया। अच्छा ठीक है। नहीं, ये पहले स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्शन है कि मैं ह्यूमन शरीर नहीं हूँ, देह मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और दूसरा व्यक्ति भी जो है वो परमात्मा है, आत्मा का अंश है, और इसी तरह व्यवहार करना, दिस बिकम स्पिरिचुअलिटी। ठीक है महाराज। नहीं, अब क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, फिर से पूछो। महाराज क्वेश्चन ये था कि स्पिरिचुअलिटी मस्ट कॉन्क्योर द वेस्ट। प्लीज एक्सप्लेन दिस कि हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन कॉन्क्योर द वेस्ट। हिंदू या इंडियन डिनोमिनेशंस बहुत सारे हैं, वेस्टर्न डिनोमिनेशंस जो अमेरिका में छा गए हैं। उनके आइडियाज जो हैं डीप तक चले गए हैं, यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पर्सन भी जो हैं उनके ऊपर भी स्पिरिचुअल आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज छा गए हैं। इसके कई आपको एग्जांपल्स दिखते हैं। ठीक है। दिस इज हाउ स्पिरिचुअलिटी इज कॉन्करिंग द वेस्ट। ठीक है महाराज। इंटरनेट को देखो, तुमको मिल जाएगा। जिसे मैंने कहा ना, परमहंस योगानंद के कितने सेंटर्स हैं। नहीं, वो सेंटर्स तो ठीक है, वो ठीक है, मैं समझ गई। और भी न जाने कितने हिंदू और ऐसे इंडियन ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो सारे भारत दुनिया में फैले पड़े। Go to internet and you will get it. Many people in the West are aware of the Upanishads today. वेस्टर्न के बहुत लोग अब आजकल उपनिषद के बारे में जानते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। All scientists, they know about this. Yes. Second question. Third question, Maharaj. Third. Page number 207. The glory of Krishna, not that he was Krishna, but that he was the great teacher of Vedanta. If he had been so his name would have died out of India in the same way as the name of Buddha has done. Please explain this. Already discussed. हाँ, मैंने थोड़ा सा सुना, जो सतीश ने आंसर दिया है ना। ये मैंने ये कहा था कि बुद्धिज्म जो है वो डिजेनरेट हो गया था। हाँ, वो मैंने सुन लिया महाराज। उसमें करप्शन आ गया था, पाप इत्यादि आ गया था, उसके कारण वो चला गया। तो वेदांत या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए वो चला।
चलो ठीक है महाराज, लास्ट क्वेश्चन पूछो। पूछो। When I was following Swamiji's teachings क्या हुआ? about 8-10 years ago, that time I was having full faith and zeal to follow those teachings exactly whatever was written there. But now not that much enthusiasm is there. So is it due to aging or something else? अरे क्यों? अभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ो ना, अभी पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? पढ़ती हूँ महाराज, पढ़ती हूँ, पर अब कुछ और तरह की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जैसे पहले तो बहुत ज्यादा हर चीज नहीं, अभी तो हम तो पढ़ते हैं, अभी भी हम पढ़ते हैं तो अभी भी जोश आता है हमको। तो हम रोज पढ़ते हैं। डिस्कस हुआ ना, तुमने सुना कि नहीं? शुरू में डिस्कस यही तो कर रहे थे। नहीं, शुरू का आज नहीं सुन हम तो पाई। रोज पढ़ते हैं जी। हाँ नहीं, हमने रोज बात जोर से कहा था। ठीक है। ये किसी ने पूछा था, हमने कहा कि रोज स्वामी विवेकानंद का पढ़ो। इतु घोष। हाँ, बार बार पढ़ो स्वामी विवेकानंद। हम 3 बार पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं कि छोटी सी किताब पढ़ी, दूसरी किताब पढ़ी, ऐसा नहीं। ठीक है। पूछते हैं स्वामी जी का इतना कम पढ़ते हैं लोग कि पता नहीं क्या बात। उसको पढ़ो, तुम देखोगे फिर जोश आ जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ में जोश लाना हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। ठीक है महाराज। ठीक है। सतीश हो गया? संजय? अच्छा, महेंद्र है कि चले गया? है महाराज, है यहाँ पे। यस महाराज। हाँ महेंद्र। अच्छा, बाद में बात करेंगे। तो खत्म करें संजय? जी महाराज, शांति मंत्र हो जाए। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज।